Hello dear learners, welcome back to Avid Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Avid Shiksha. So let us begin. आज का जो date है that is 5th of November and all the important articles are here as follows. पहला है state to observe Sudha Kanth's 14th death anniversary today. ठीक है, तो state हम yes 5th of November is the death anniversary of Dr. Bhupen Hazarika, right? So उनका ये 14th डेथ एनिवर्सरी होने वाला है. 2011 was the year when he left us, right? तो ये उसके बाद से it is the 14th डेथ एनिवर्सरी. ठीक है. नेक्स्ट इज प्लान टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू शिप बिल्डिंग हब. ठीक है, तो इंडिया में जो है हम जो है शिप रिपेयर और शिप बिल्ड करने वाले, ये हमारा फोकस है. कंट्रीज लाइक सिंगापुर, ठीक है, दे हैव मास्टर्ड इट. ठीक है, एंड इसमें बहुत फायदा भी है. ठीक है, तो शिप बिल्डिंग हब जो है वी वांट टू बिकम because we have a very long coastline, we can leverage it. Okay, and last is Supreme Court flags misuse of POCSO Act to punish adolescent relations. ठीक है, misuse जो है POCSO Act से बहुत किया जाता है, you know, especially against the male counterparts, कि adolescent relation में होकर भी ये इसका यूज किया जाता है to ठीक है, to punish the ones who are in relation. तो ये इसका सुप्रीम कोर्ट ने इसको फ्लैग किया, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए देखते हैं एक करके. स्टेट टू ऑब्जर्व सुधा कंठोस 14th डेथ एनिवर्सरी टुडे. ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं आर्टिकल, आप लोगों को पता ही होगा. Assam is paid to rich tribute to Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika on his 14th death anniversary. 5th November 2011 को वो जो है स्वर्ग की ओर रवाना हुए थे. And the state government, cultural bodies and organizations have arranged elaborate programs across all the districts. Chief Minister Himanta Biswa Sharma paid homage on social media, calling Hazarika the voice that united hearts. ठीक है, and shared visuals of student rehearsing song Manu hai Manohar Babe. ठीक है, Manu hai Manohar Babe. It was a song, you know, to a call to the people. If people are not with the people, एंड अगर हम बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हो जाएंगे तो कैसे, और अगर इंसान ही इंसान का मदद नहीं करेगा तो कौन मदद करेगा किसका. ठीक है, तो ये गाना जो है उनका, इट वाज अ कॉल टू ह्यूमैनिटी. ठीक है, इट वाज अ कॉल टू ह्यूमैनिटी बिकॉज इट वाज द टाइम व्हेन असम वाज गोइंग थ्रू टर्मोइल एंड स्ट्रगल, राइट? तो दैट came as a how do we call it, it came as a unifying factor. Music came as an unifying factor. ठीक है, the Department of Culture and DIPR in Information and Public Relation, Department of Information and Public Relation have planned district-wide observation of choral performances, film screenings, floral tributes, supervised by guardian ministers. ठीक है, the main function will be held at Dr. Bhupen Hazarika Samanvay Kshetra, Jalukbari and at the Latashil Playground. ठीक है, तो लताशिल जो प्लेग्राउंड है वहां पर भी, और उनका जो डॉक्टर भूपेन हजारिका खम्मानय क्षेत्र जो है जालुकबारी में, आप लोग जब जालुकबारी की तरफ गए होंगे तब आप लोगों ने देखा होगा, इट इज वेरी क्लोज टू दी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, राइट? तो वहीं पे उनका जो है आज उनको उनके ट्रिब्यूट जो है दिया जाएगा. ASU, that is All Assam Student Union, will organize tribute at Digholi Pukuri, lighting 10,000 earthen lamps. Regional units across Assam will hold similar events. तो दिघोली पुकुरी में 10,000 जो earthen lamps दिया है वो चला जाएगा. Dr. Hazarika, who passed on 5th November 2011, remains deeply revered as a cultural icon. His timeless message to humanity and unity continues to inspire people through his music. उनके म्यूजिक के द्वारा जो है कंटिन्यूअसली जो है उनको they have united us. ठीक है, these music have united us. Clear? We can move to the second news. The second news is plans to transform India into a ship building hub. ठीक है, तो शिप बिल्डिंग अपने आप में एक बहुत ही बड़ा, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली बिल्डिंग है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम इसको काउंट करेंगे. एंड इसका एक बहुत ह्यूज डिमांड है. ठीक है, ग्लोबली बहुत ह्यूज डिमांड है एंड इंडिया कैन लेवरेज इट. हम ये जो पूरा शिप बिल्डिंग का जो काम है, शिप रिपेयरमेंट का काम है, शिप जब उसका एज हो जाता है उसके बाद वी कैन डिस्ट्रॉय इट एंड उसके जो पार्ट्स है उसको हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो शिपिंग इंडस्ट्री है अपने आप में एक बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है. ठीक है, और इंडिया के लिए खासकर एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज इट इज अ वेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री, और साथ ही हम जो है उस पर लेवरेज कर सकते हैं. ठीक है, तो
तो इसीलिए कार्गो हैंडलिंग, शिप हैंडलिंग जो बिजनेस है बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। एंड हम इस पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, बिकॉज इफ यू सी द पोजीशन ऑफ इंडिया, एक सब कॉन्टिनेंट, अपने आप में एक सब कॉन्टिनेंट है, तो जब वेसल्स यहाँ से मूव करते हैं तो उनको इंडिया होके जाना ही पड़ता है, ठीक है। इफ मतलब अगर वो सुई कैनाल से आते हैं तो उनको इंडिया होके ही जाना पड़ता है, ठीक है। अगर वो सुई कैनाल का यूज करते हैं, यहाँ पे सुइस कैनाल है जो इजिप्ट में है, यहाँ से बाबल मंदिर नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होकर वो उनको इंडिया आना ही पड़ता है, ठीक है। देन दे कैन गो टू दी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट। तो ये हम लोग बहुत ही बड़ा एक वी कैन ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ शिप बिल्डिंग हब, ठीक है। Although about 90% of foreign trade volume takes place through maritime routes, the country relies heavily on foreign ship, around spending 6 lakh crore annually. हमारा जो देश है वो हर साल foreign ships में 6 लाख करोड़ रुपए जो है spend करते हैं. To address this, Government of India has launched ambitious plan to transform major shipbuilding hub. ठीक है, तो हम जो है शिप्स खुद ही बनाएंगे, फॉरेन शिप्स निकलेंगे, हम खुद से बनाएंगे और खुद से वी वुड बी सफिशिएंट, ठीक है। Union Minister of Port, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal, stated that shipbuilding financial assistance worth rupees 24,000 crore have been initiated to make India self-sufficient in vessel production within 25 years. तो 25 साल में हम खुद से वेसल बनाना शुरू कर देंगे, जो वेसल कार्गो मूवमेंट है ये सब हम खुद से करा लेंगे. Currently, only 5% of India's export-import cargo is Indian owned or flagship. ठीक है, तो सिर्फ 5% है, बाकी 95% तो हम फॉरेन शिप्स पे रिलाई करते हैं. To boost reliance, the government also created maritime development fund of 25,000 crores and capacity and capability development exceeding 19,000 crore. तो आप लोगों को पता ही होगा कि डिब्रूगढ़ में हम लोग एक एक कैपेबिलिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम बना रहे हैं डिब्रूगढ़ में, ताकि आसाम के लोग, आसाम के जो स्टूडेंट्स है वो भी दे कैन एंगेज इन शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर में वो लोग भी अपना फ्यूचर जो है वो बना सके. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा और इम्पोर्टेंट रहेगा इंडिया के लिए, ठीक है. द गोल इज टू मेक इंडिया वर्ल्ड्स टॉप 10 शिप बिल्डिंग नेशन बाय 2030 एंड टॉप 5 बाय 2047. तो हम जो है टॉप 10 में आना चाहते हैं बाय 2030 एंड टॉप 5 में आना चाहते हैं बाय 2047. Sonowal highlighted that self-reliance will enhance national security, attract investment over 2 million jobs in shipbuilding and ancillary industries. He added that India, once historically strong in shipbuilding, has lost its prominence due to past neglect of the sector. Yes, लोथल में डॉकयार्ड पाया गया था, राइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पे. देन नेवल आप लोगों ने नेवल प्रावेस ऑफ टीपू सुल्तान सुना होगा. नेवल प्रावेस ऑफ, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री में देखें, देन वी हैव राजराजेंद्र चोला 1, राइट. नेवल प्रावेस में उन्होंने श्री विजय जो है वो इट इज इन इंडोनेशिया, वहां तक उन्होंने कैप्चर किया था. तो नेवल प्रोवेंस था, ऐसा नहीं है, ठीक है. एंड ऑल्सो इन दी पोर्ट्स ऑफ कैलकाटा, इट वाज अ वेरी बस्लिंग इंडस्ट्री. मछलीपट्टनम जैसे शहर, पुहार, कावेरीपट्टनम, देन वी हैव सूरत, ये सारे शहर जो है ये पोर्ट्स के आसपास ही डेवलप हुए, राइट. तो बहुत ही प्रावेस है, हमारे पास कैपेबिलिटी भी है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी है, तो वी जस्ट हैव टू लेवरेज इट. इट इज द मेजर फोकस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, समझ आया. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल, ठीक है. एंड लास्ट न्यूज इज सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स मिसयूज ऑफ पॉक्सो एक्ट टू पनिश एडोलसेंस रिलेशन. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत ही ज्यादा मिसयूज किया जाता है, पॉक्सो एक्ट जो है उसका बहुत मिसयूज होता है एडोलसेंट रिलेशंस को. मतलब एडोलसेंट, हु इज एन एडोलसेंट? 18 plus is an adolescent, right? तो जो भी 18 plus है उनको उनका जो रिलेशन है उसको पॉक्सो के अंतर्गत लाकर बहुत बार हैरास भी किया जाता है, तो बहुत मिसयूज हो जाता है पॉक्सो का. तो उसका मेन इंटेंडेड जो आउटकम चाहिए था वो नहीं होके बाकी बहुत कुछ जगह में ये यूज हो जाता है, ठीक है. The Supreme Court on Tuesday expressed concern over growing misuse of protection of children from sexual offences POCSO Act to criminalize consensual adolescent relationship. ठीक है, क्या करते हैं, जो consensual adult relationship होता है उसको भी क्रिमिनलाइज करने की कोशिश करते हैं पॉक्सो का इस्तेमाल करके. 2012 में ये एक्ट लाया गया था जो
एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है उसको स्टॉप करने के लिए, चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट को लाया गया था। तो 17-18 ईयर्स के बेबी जो पहुंच जाते हैं ना, वो लोग का पॉक्सो लगा के जो कंसेंशुअल रिलेशन है उसको बिल्ड नहीं होने देते, पॉक्सो लगा देते, धारणा लगा देते हैं। और स्पेशली जो मेल काउंटर पार्ट है उनको तो पुलिस ही ले जाती है। डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट बेल यू नो इन द एक्ट, बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट रूल्स है इसमें। एज इट वॉज कंसिडरिंग इशूइंग ऑफ टू स्प्रेड लीगल अवेयरनेस ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि लीगल अवेयरनेस बढ़े लोगों में भी, और साथ ही जो पुलिस डिपार्टमेंट जो एसएचओज है उनको उतना अवेयरनेस नहीं है, उनको बस अगर उनको कंप्लेंट मिलता है वो डायरेक्टली जेल भरने का कोशिश करते हैं, तो उनको भी अवेयरनेस नहीं है। सब इंस्पेक्टर्स एंड इंस्पेक्टर्स उनको भी उतना अवेयरनेस नहीं है, एसएचओज को भी उतना अवेयरनेस नहीं रहता अबाउट दिस एक्ट, तो डायरेक्ट वो एफआईआर फाइल कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लीगल अवेयरनेस जनरेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। A bench of Justices B.V. Nagaratna and R. Mahadevan observed that while adjudicating the bail pleas, it had repeatedly overcome in such instances where stringent provision of the laws were invoked as a form of retribution, ठीक है। बदला लेने के भाव में ये इस तरीके से जो स्ट्रिंजेंट लॉज है, जैसे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ऐसा स्ट्रिंजेंट जो लॉज है उसको लाया गया है, जबकि तो फ्रेमर्स उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हम करेंगे, ठीक है। The judges stress that need for greater legal awareness, particularly among male adolescents who are often at the receiving end of the such prosecution। मैंने यही बोला कि जो मेल एडोलसेंट्स होते हैं ना, उनको ज्यादातर ये जो है जो खास्ती है वो भुगतना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर जो है पुलिस उठा के ले जाती है उनको, है ना, पुलिस उठा के लेके जाती है, जेल में भर के रख देते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा, इसका बहुत ही मिसयूज भी हुआ जाता है, ठीक है। The POCSO is misused in cases concerning of consensual relationship, ठीक है। जो adolescents के बीच में जो consensual relationship है उसको, adolescents जो है, adolescents पीरियड में जैसे 16, 17, 18 ये समय में आप सबको पता है, आप सब गुजर के गए हैं इस एज ग्रुप से। ये एज के समय पे इट इज वेरी यूजुअल राइट कि गर्ल्स बॉयज जो है या फिर जो भी है डिफरेंट सेक्स के हो, कॉमन सेक्स के हो, जेंडर irrespective of their gender biases or gender preferences, these young children they get involved in certain relationships, और इसको पेरेंट्स मिसअंडरस्टैंड करते हैं, एंड पेरेंट्स क्या, गार्जियंस जो भी है मिसअंडरस्टैंड करते हैं, एंड देन पॉक्सो का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पॉक्सो कंसेंशुअल जो रिलेशनशिप है उसके खिलाफ नहीं है, जो असॉल्ट्स है उसके खिलाफ है, राइट। कि आप जो सेक्सुअल ऑफेंस है उसके खिलाफ है, कंसेंशुअल रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं है, लेकिन सेक्सुअल ऑफेंसेस के खिलाफ है। एक ऑफेंस और कंसेंशुअल रिलेशनशिप को भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है इन दी प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस में इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसीलिए क्या काम है, वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स बॉयज एंड मेंस अबाउट दी लीगल प्रोविजन। जो लीगल प्रोविजन है उसका जो अवेयरनेस है वो हमें जनरेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड नॉट जस्ट पॉक्सो, एवरी अदर एक्ट, हर एक्ट में आपको लीगल प्रोविजंस क्या है, आपके डूज एंड डोंट्स क्या है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। समझ आया? चलिए पॉक्सो के बारे में देख लेते हैं। ये एक्ट को 2012 में लाया गया था, स्पेशली पहला कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो स्पेसिफिकली सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन की बात करता है। इस एक्ट में 18 से बिलो जो भी है, बिलो 18 जो भी है, उन सबको एक चिल्ड्रन के रूप में देखा गया है, ठीक है। सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, एंड इनफैक्ट 2019 के रूल्स में पोर्नोग्राफी को भी इसमें ऐड किया गया, ठीक है, कि पोर्नोग्राफी क्या है उसको भी ऐड किया गया। For the first time it defined penetrative sexual assault and sexual harassment. Difference है, penetrative sexual assault अलग है, sexual assault अलग है, and sexual harassment एक अलग है, सबको डिफाइन किया गया है। It also includes penalties for storing pornographic material and abatement of an offense, ठीक है। तो pornographic material जो है, स्पेशली जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, उसके खिलाफ भी यहाँ पर इसको भी क्रिमिनल चार्जेस के रूप में देखा जाए। क्लियर हुआ? समझ में आया? वेरी वेरी क्रूशियल, ओके, वेरी 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 क्रूशियल। Alright, with this we have come to end of today's session. If you like this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care and thank you.